to talk about this weirdest topic, which is cheese. At the University of Michigan, anybody been there? 2015, researchers did a survey of 384 people and they asked them this question: which foods cause you problems? And by problems, what I mean is you have trouble cutting down, you can't control how much you eat. And it turned out that the fifth most problematic food was ice cream. No big surprise, right? The fourth one was cookies. The third one was chips. The second one was chocolate. But the first one was pizza. तो उन्होंने कहा कि आज जिस विचित्र चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है चीज। उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक रिसर्च की गई जहां लोगों से पूछा गया कि ऐसा कौन सा खाने की चीज है जो आप जो है चाह के भी जिसको कम नहीं कर सकते। तो जो 5वें नंबर पे आई थी वो आइसक्रीम थी, उससे पहले आई थी चिप्स और चॉकलेट कैंडी, इस तरह की चीजें आई थी। और जो नंबर 1 चीज थी जिसको लोग चाह के भी कम नहीं कर पा रहे थे वो था पिज्जा, यानी कि चीज। And I'm going to say it's not the sun-dried tomatoes. It's not the olives. It's not even the crust. There's something about that half inch of yellow asphalt all over the top that makes pizza this addictive food that people just lose track of. And so the fact of the matter is people love cheese, but it just doesn't love you back. And that's what I'm going to talk about today. So let me start with this. What causes weight problems? You know, if you talk to people about weight problems, Carolyn, you see people in the office and they all bring in this idea that I got heavy from eating sugar, right? You hear this, right? It's तो कहते हैं कि जो चीज है जिसको सब लोग बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन ये चीज हमारे को उल्टा उस प्रेम के रिटर्न में हमें कोई फायदा नहीं देती। अधिकांश लोग जो हैं वो कहते हैं कि मेरा वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया। लोग सोचते हैं मेरा वजन चीनी खाने से बढ़ा है, पर क्या ऐसा है? too much soda, kids have too much, and soda is not health food. However, I am going to put a question mark. Is that the reason fueling the obesity epidemic? And here's why I say that. उन्होंने कहा कि जो सोडा है जिसमें इतनी चीनी होती है, वो चीनी अपने आप में हम सबको पता है हेल्थ के लिए चीनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्या ये जो इतना मोटापा हम देख रहे हैं वो सिर्फ चीनी के कारण है? तो कहते हैं कि 1999 में हम सबसे ज्यादा चीनी खा रहे थे अमेरिका में, फिर 2014 आते आते हमारी चीनी की जो कंजम्पशन है वो कम हो गई। It was 1999 when soda consumption started to fall quite precipitously. And in fact, sugar consumption in general started to fall. And that's because bottled water came in such a big way that it started pushing the sodas off the shelf. But here's cheese. Up and up and up and up and up. The average American consumes 30, in 2017, we're now up to 35 pounds of cheese. That's 65,000 calories worth of cheese the average American eats every single year. Okay, now this is very important. This is going to be on the test. Where are the calories in food? So everybody who's worried about sugar, and again, I'm not saying sugar is health food, but a gram of sugar has 4 calories. A gram of fat has 9 calories. Is that familiar? तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा कि चीनी अच्छी है सेहत के लिए, चीनी भी बहुत खराब है, लेकिन आप ये देखिए कि चीनी और फैट में कितना फर्क है। आपने 1 ग्राम चीनी खाई, उससे आपको 4 कैलोरी मिली, 1 ग्राम फैट से आपको 9 कैलोरी मिली, मतलब डबल से भी ज्यादा कैलोरी जो है वो फैट में है। चीनी की क्या प्रॉब्लम होती है कि चीनी जब आप खाते हैं तो वो लिवर में जाके खराब वाले फैट में कन्वर्ट हो जाती है और वो कॉज करती है हार्ट डिजीज। तो सिर्फ मोटापा नहीं कॉज करती चीनी, हार्ट डिजीज कॉज करती है। और जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स में देखा है कि अगर हमारी उम्र 10 साल से ज्यादा है तो हम सबको ऑलरेडी हार्ट डिजीज है, हमारी आर्टरीज में ऑलरेडी प्लैक्स बन चुके हैं, तो इसीलिए हमें चीनी बिल्कुल नहीं खानी। दूसरी चीज, चीनी कैंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ चीनी खा सकता है। तो अगर हमारी बॉडी में कहीं भी एक सेल कैंसर का है तो वो चीनी खा के बड़ा होगा। और हमेशा हमारी बॉडी में कोई ना कोई कैंसर का सेल घूम रहा होता है, क्योंकि कैंसर के सेल रोज बनते हैं और रोज हमारे इम्यून सेल्स जो हैं उनको मारते हैं। तो हमें कैंसर क्लिनिकली कब होता है?
जबकि हमारी इम्यून सेल्स जो हैं वो कैंसर से लड़ाई हार जाते हैं, यानी कि उन कैंसर के सेल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो डेली बेसिस पे ये इस तरह की म्यूटेशंस होती रहती हैं रैंडमली, और जिनको हमारे इम्यून सेल्स ठीक करते रहते हैं। तो तीसरी चीज़, अगर हम चीनी खाएँगे तो हमारी जो एजिंग प्रोसेस है, जो जंग लगने की प्रक्रिया है, वो बॉडी में बहुत फास्ट हो जाएगी। तो चीनी तो वैसे ही ज़हर है, लेकिन आप देखिए फैट जो है वो भी कितनी प्रॉब्लम है। Okay, well, wait a minute. Are we clear? A gram of sugar has 4 calories. A gram of fat, any kind of fat, no matter what kind it is, has 9 calories. So if I have the leanest beef, it's about 29% fat. The leanest chicken, about 23. Fish varies. Some are lower, some are higher. But all these plant foods are really low in fat. That's why they're really low in calories. तो मैंने कहा अगर आप देखो कि फैट कंटेंट जो होता है, जो बीफ होता है उसमें 29% फैट होता है, जो चिकन होता है उसमें 23% चिकन जो है वो प्योर फैट है। तो आप सोचिए कितना फैट खा रहे हैं, और अभी तो आपने इस चिकन को बनाने के लिए बाहर से एक्स्ट्रा फैट ऐड ही नहीं करा। तो जब आप वो बनाते हैं, चिकन तंदूरी बनाते हैं या चिकन फ्राई बनाते हैं या चिकन करी बनाते हैं, तो आप सोचिए 50% फैट खा रहे हैं। वो जा कहाँ रहा है? सीधा आपकी हार्ट की आर्टरीज में जा रहा है, ब्रेन की आर्टरीज में जा रहा है। और जो फिश है वो डिपेंड करता है 32% तक उसमें फैट होता है। पर आप ये देखिए कि वेजिटेबल्स में कौन कहाँ फैट है, 1% से लेके 8%। तो ये जो फैट है ये गुड वाला फैट है। चाहे आप इसका 100% भी खाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका फायदा होगा। इसमें सैचुरेटेड फैट नहीं है। Where's cheese? Is it more like beef or is it more like the broccoli? What would you say? तो उन्होंने कहा चीज कहाँ आती है? चीज बीफ की तरह 29 के आसपास है या मोर लाइक ब्रोकली और स्वीट पोटैटो है? तो चीज जो है 70% चीज जो है वो फैट है। मतलब फैट में चीज का कोई मुकाबला ही नहीं है। जैसे कि आपने 3 से ज़्यादा गुना जैसे आपने बीफ खा लिया हो। Okay. Typical cheeses are 70% fat. That's right. It's mostly saturated fat. If it were any worse, it would be Vaseline. This is what people are eating. And उन्होंने कहा कि जो चीज़ है वो इतनी खराब है कि प्योर सैचुरेटेड फैट है। अगर इससे थोड़ी भी अगर बढ़ गई तो इट्स लाइक ईटिंग वैसलीन। तो जैसे आप चीज़ खा रहे हो तो आप वैसलीन खा रहे हो, सैचुरेटेड फैट खा रहे हो। you can get sweet things that have no calories at all. There is Coke Zero, but there is no Cheddar Zero. I have to tell you, there just isn't. Okay, so it's all got a lot of calories. The second thing is beans have fiber, and vegetables have fiber. And the cool thing about fiber is it's a boring word. Don't go to sleep. But it fills you up, and it has effectively no calories. So when you're eating fruits and vegetables and beans and grains, you get fiber, and that's part of why you push away from the table a little sooner. So there is a little bit of fiber in beans and broccoli and apples and oranges and bananas and brown rice. But cheese is not a plant. It doesn't have any fiber at all. Zero. तो उन्होंने कहा दूसरा क्या नुकसान है चीज में? एक तो कोरा फैट है, वो भी सैचुरेटेड फैट, सबसे खराब तरह का फैट। 70% जो है वो प्योर फैट खा रहे हो आप। दूसरी चीज, जो प्लांट से चीजें निकलती हैं उनमें फाइबर होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को, बैड वाले कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप करके आपकी पूप में डाल देता है। तो जो रहा सहा फैट भी बाकी खाने में होता है वो भी अधिकांश आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। और यही फाइबर जो है आपके हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, कैंसर के रिस्क को कम करता है, अच्छे वाले बैक्टीरिया को फीड करता है। और ये अच्छे वाले बैक्टीरिया जो हैं ऐसे ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो सीधा जाके पूरी बॉडी को हील करता है, यहाँ तक कि आपकी डिप्रेशन की टेक केयर करते हैं। आपको टाइप 2 डायबिटीज नहीं हो, ये काम आपके अच्छे वाले बैक्टीरिया करते हैं। लेकिन वो अच्छे वाले बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ फाइबर खाते हैं, और चीज में क्या है? जीरो फाइबर है। तो चीज से ये भी प्रॉब्लम है। और ये जो फाइबर है आपको, मैंने काफी खा लिया ऐसी फीलिंग देते हैं। तो आप बहुत ज्यादा खाना नहीं खाते, क्योंकि ये आपके पेट में खाना खा लिया इस तरह का आपकी फीलिंग कॉज करते हैं। तो आप अत्यधिक खाना नहीं खाते, जबकि चीज ऐसी कोई फीलिंग क्रिएट नहीं करता। तो चीज में मतलब नुकसान ही नुकसान है। Okay. How about sodium? The reason we're concerned about sodium isn't just blood pressure. You know, sodium raises blood pressure, right? But also, sodium means that you're going to retain water weight. So if you have a lot of salt in your diet, you can retain a couple of pounds
of water weight and feel kind of blobby. So an orange has a milligram of sodium, an apple has 2, brown rice has about 20, potato has 13, and potato chips 330. Well, where's cheese in this? Is it more like an orange? Is it more like potato chips? Well, cheddar has 350 and Edam has 500 and Velveeta has 800 milligrams. तो वो कहते हैं कि जो नमक है वो भी खाने में बहुत महत्व रखता है। हमें मालूम है हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है नमक खाने से, लेकिन हमने डॉक्टर ग्रेगर के वीडियोस में ये भी देखा था जो ज्यादा नमक खाते हैं उनको एलर्जीज बहुत होती हैं। और अगर एस्मा वाले पेशेंट या जिनको एलर्जीज हैं उनके खाने से अगर हम नमक एकदम कम कर दें तो अपने आप ही अधिकांश एलर्जीज और जो एस्मा है उसमें बेहद फर्क पड़ता है, और यहाँ तक कि आर्थराइटिस में, जोड़ों के दर्द में। तो अगर हम नमक और दूध, ये दो चीजें, दूध एकदम निकाल दें और नमक एकदम कम कर दें तो इन तरह की बीमारियों में बहुत आराम मिलता है, क्योंकि नमक जनरली इन्फ्लेमेशन कॉज करता है बॉडी में। तो उन्होंने कहा ये जो नमक हमारे लिए इतना खराब है वो ऑरेंज में, एप्पल में, ब्राउन राइस में कितना है, 1 से 20 तक है। पोटैटो चिप्स में 300 से ज्यादा है, और चीज में 350 से लेके 800 तक। तो कितना डेंजरस है, कितना नमक खा रहे हैं चीज में। और अभी तो हमने पिज्जा के सॉस में और उसकी क्रस्ट वाला नमक तो गिना ही नहीं। तो प्योर चीज में चीज हमारे लिए कितनी ज्यादा, इसीलिए चीज हमें इतनी पसंद है। एक तो उसके अंदर चीज है, दूसरा नमक है, दोनों ही एडिक्टिंग है। Grams of sodium in one single 2-ounce serving. Am I cheering you up? Okay. So at the Adventist Health Study, researchers have studied Seventh-day Adventists, and the reason researchers key into this population is because by church teachings, they are supposed to be non-smoking, non-drinking, moderate living, health-conscious people. And part of that is you should be a vegetarian, you should follow a vegetarian diet. But not all Adventists do that part of it. So it sets up a great natural experiment of health-conscious non-smokers who follow different diets. So the American Diabetes Association published these data in 2009, almost 61,000 people. तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक जगह है, अमेरिका में एक तरह का चर्च है, एडवेंटिस्ट चर्च, और इस चर्च की टीचिंग्स ये है कि आपको वेजिटेरियन डाइट खानी चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए। लेकिन सब लोग जो हैं ये फॉलो नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन ये बहुत अच्छा एक जगह मिल जाती है नेचुरल, कि हम स्टडी कर सकें, लोगों को कंपेयर कर सकें कि कौन लोग जो हैं वो जो फॉलो करते हैं उनकी हेल्थ कैसी है, और जो नहीं फॉलो करते उनकी हेल्थ कैसी है। तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने ये 2009 में ये डेटा पब्लिश किया था। काफी बड़ी स्टडी थी ये, ऑलमोस्ट 61,000 लोगों को इन्होंने स्टडी किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि एक तरफ है नॉन वेजिटेरियन जो मीट, अंडा, मच्छी खाते हैं, एक है जो कम खाते हैं, एक है जो सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ साथ फिश भी खाते हैं, और एक है जो दूध, अंडा और सब्जियां खाते हैं पर मीट नहीं खाते, और लास्ट में आते हैं वीगन्स जो कि सिर्फ और सिर्फ जो बिल्कुल दूध, मीट, अंडा, मच्छी नहीं खाते, सिर्फ दाल, रोटी, सब्जी टाइप खाना खाते हैं। तो उन्होंने उनका बॉडी मास इंडेक्स वो जो है वो कैलकुलेट किया, यानी कि मोटापा कितना है लोगों के अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप था जो हेल्दी रेंज में था, बाकी सब जो थे, ये पहला वाला ग्रुप तो बहुत ही ओवरवेट था, फिर ये वाले भी ओवरवेट थे, ये भी ओवरवेट था, जो दूध और अंडा खा रहे थे वो भी ओवरवेट थे, और एंड में जो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप था, जो पूरा का पूरा ग्रुप जो था वो हेल्दी वेट रेंज में सिर्फ एक ग्रुप था, और वो ग्रुप था जो दूध, मीट, अंडा, मच्छी नहीं खा रहा था। And they were all following their version of the diet. But are you familiar with body mass index? Okay, you know, it's your weight, but it's adjusted for how tall you are, and it should be below 25 for good health. तो उन्होंने कहा कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा ये आपका वेट है, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट की जाती है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी हाइट कितनी है। तो उन्होंने कहा हेल्दी होना चाहिए 25 के नीचे।
And so over on the left, the red line there, those are the meat eaters, the non-vegetarians, and their BMI is not under 25, it's 28.8. So your average meat-eating adult is overweight. Now the next line, this is the person who says, I have meat, but just in moderation, less than once a week, semi-vegetarian. A little bit skinnier, but not a lot. And then pesco vegetarian. Pesco is, okay, fish, but no other meats. A little slimmer, but not dramatically so. And then ovo-lacto vegetarian. Ovo meaning eggs, lacto, milk. Okay, all right. So you have eggs, milk, cheese, so forth, but you don't have the fish or meat. But who's that blue line there? I have to explain to my patients that a vegan is not somebody from the planet Vegas, okay? But they happen to be the only group that's smack in the middle of the healthy weight range. So let's focus in on these last two groups. I am going to say that the difference between an ovo-lacto and a vegan is really the cheese and the dairy that gets thrown in there, right? Does that make sense? And if you do the math, that works out to be about 15 pounds different. So तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम है ये पहले 3 वाले ग्रुप हेल्दी नहीं है। लास्ट 2 ग्रुप्स जो हैं, जो दूध और अंडा खा रहे हैं, ये हरे वाला बार, उनका वेट हेल्दी रेंज में नहीं है, और जो लोग सिर्फ दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं, उनका हेल्दी रेंज में। तो इन दोनों में फर्क क्या है? अब आप में से कुछ ये मत सोचना कि मैं तो दूध भी पीता हूँ, अंडा भी खाता हूँ, पर मेरा वेट ठीक है। वो पूरे ग्रुप का ले रहे हैं। तो हो सकता है आप अभी यंग हो, आपको नहीं पता हो, तो पूरे ग्रुप का ले रहे हैं। और तो दोनों में जो डिफरेंस है, उन्होंने कहा वो मेनली दूध के कारण है, और ये 15 पाउंड का डिफरेंस है। तो केजीज में वो रफली 6 केजी का फर्क। The average ovo-lacto vegetarian weighs about 15 pounds more than their vegan friend who keeps encouraging them to get rid of the Velveeta. All right. So what is cheese anyway? Well, let's go to Thorest, Wisconsin. And the milk truck arrives early in the morning, and they pour it in this kind of waiting pool thing. And then they put in bacteria to ferment it. What bacteria do they use? Between your toes, there are species of bacteria called Brevibacteria, B-R-E-V-I. Did you have a college roommate who didn't wash for like an extra long period of time, and you would say, what is that smell? That smell is the fermentation product of Brevibacteria working on the dead skin between his toes and kind of fermenting it. You've had dinner already, right? Okay, so oh my god, तो ये कह रहे हैं कि अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज बनती कैसे है। तो कहता है ये है एक चीज फैक्ट्री। यहाँ पे वो क्या करते हैं, सुबह सुबह बड़े बड़े इस तरह के जो बर्तन हैं, इनके अंदर दूध डालते हैं, फिर इस दूध में ऐड करते हैं बैक्टीरिया। और ये कौन सा बैक्टीरिया है? फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया ऐड करते हैं। कहते हैं आपके जो पैरों की उंगलियां हैं, उनके बीच के अंदर ये बैक्टीरिया रहते हैं। इसका नाम है ब्रेवी बैक्टीरिया। कहते हैं अगर कभी आपने किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हो जिसने बहुत देर तक अपनी सॉक्स ना उतारी हो, और फिर वो एकदम से अपनी सॉक्स उतारे, और वो जो स्मेल आती है, वो स्मेल है ब्रेवी बैक्टीरिया, जो है स्किन के ऊपर जब काम करती है, स्किन के को फर्मेंट करती है, उसके ऊपर वाली लेयर्स को, डेड स्किन को, तो वो फर्मेंटेशन से जो स्मेल आती है, वो ब्रेवी बैक्टीरिया का काम है। तो ये वही वाले बैक्टीरिया दूध में ऐड करते हैं चीज बनाने के लिए, फर्मेंट करने के लिए। If I'm going to make my Limburger or my Munster extra pungent, what am I going to use? They don't use something like Brevibacteria. That's exactly what they do use, is Brevibacteria. And if it smells like stinky feet, that's not a coincidence. Okay? उन्होंने कहा कि चीज बनाने के लिए वो ब्रेवी बैक्टीरिया जैसी कोई चीज नहीं यूज करते, एग्जैक्टली वही बैक्टीरिया यूज करते हैं जो हमारे पैरों को बैड स्मेल देते हैं, हमारी उंगलियों के बीच में होते हैं। Okay, so in go the bacteria, and then I'm going to add rennet. What's rennet? Anybody know what rennet is? It's an enzyme, right? Where does it come from? It comes from the fourth stomach of a slaughtered calf. कहते फिर इसमें डाली जाती है रेनेट। ये रेनेट जो होती है, ये कोआगुलेशन की चीज होती है, जो
इसको कहते हैं दूध फाड़ने के लिए यूज किया जाता है। और ये रेनेट आती कहाँ से है? जो चौथा स्टमक होता है बछड़े का, गाय के छोटे बच्चे का जो चौथा स्टमक होता है, उसमें से ये रेनेट आती है। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो कहते हैं हम गौ माता को बहुत मानते हैं और चीज प्योर वेजिटेरियन होती है, आज हमें ये भी पता चल गया कि जो कमर्शियली लेवल पे जो चीज बनाई जाती है, घर का बनाया हुआ पनीर नहीं, जो कमर्शियली आप पिज्जा खाते हो, उसके अंदर रेनेट होती है, जो कि गाय के बछड़े के फोर्थ स्टमक से बनाई जाती है। And now people will say, I'm not going to eat that. That's horrible. And it may cheer you up to know that most cheese factories don't use that. They use instead a rennet that is genetically engineered. Thank God. But they don't write that on the label because they know nobody would buy it anymore. But that's what they're either using the one from a calf or they're using the genetically engineered one. So in it goes. हाँ, तो थैंक गॉड वो कह रहे हैं कि अधिकांश लोग अब बछड़े के फोर्थ स्टमक वाली रेनेट नहीं यूज करते, पर उससे भी वर्स है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियर्ड रेनेट यूज करते हैं, तो जो कि एकदम केमिकली बनाई हुई चीज होती है। तो इधर वे ये आपका कोई फायदा नहीं करता। That coagulates the solid, and then the liquid, which is whey, all drains off, and down it goes, and you're left with this solid stuff that we call cheese. And then you have to stop the bacterial action from going too far, so you throw salt all over the top of it. And that's why it ends up really high in fat, because you're concentrating the fat, high in protein, high in cholesterol, high in salt. Okay? फिर क्या करते हैं कि ये फर्मेंटेशन और ज्यादा ना होती जाए, बहुत सारा नमक इसके ऊपर डाल देते हैं ताकि ये फर्मेंटेशन बंद हो जाए, बैक्टीरिया को मार दें। पर ये जो इतना सारा इन्होंने नमक डाला, फिर वो इसलिए हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा नमक आता है जब हम चीज खाते हैं। Can you get hooked on cheese? You ever know anybody who was? Maybe you were? Okay. First of all, it's salty. Secondly, it's greasy. And we love greasy, salty things like onion rings, French fries, potato chips. But it's not just the greasy, salty part. There's something else. Have you heard of casomorphins? Casein. उन्होंने कहा कि चीज जो है, क्या ये एक नशीले पदार्थ की तरह हमें एडिक्शन देती है? तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप जो है चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते थे या करते हैं, किसी को जानते हैं जो करता हो? तो सब लोगों ने, अधिकांश लोगों ने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कारण क्या है? हाँ, इसके अंदर नमक बहुत ज्यादा होता है, इसमें फैट बहुत ज्यादा होता है, और हमें मालूम है साइंस से कि सॉल्ट, फैट और शुगर, ये तीन चीजें हैं जो हमारे ब्रेन के ऐसे रिसेप्टर्स पे काम करती हैं, डोपामिन रिसेप्टर्स, ये वही रिसेप्टर हैं जहाँ पे कोकेन, हेरोइन जाके काम करती है और फिर डोपामिन सिक्रीट करती है, जो प्लेजर हार्मोन्स होते हैं। उन्हीं रिसेप्टर्स पे जाके फैट और नमक भी काम करता है। तो ये जब हम फैट और नमक वाली कोई चीज खाते हैं, जैसे पोटैटो चिप्स हो गया, चीज हो गया, तो वो वहां जाके ये हार्मोन रिलीज करते हैं, प्लेजर हार्मोन, और हमें ज्यादा से ज्यादा उन खानों की तलब होती है, तो एडिक्टिंग होते हैं। पर कहते हैं डॉक्टर नील बर्नार्ड कि सिर्फ नमक और फैट ही नहीं है, चीज में एक और ऐसी चीज है जो हमें नशा कराती है, उसकी लत पड़वाती है, उस खाने की एडिक्शन देती है। और वो चीज क्या है? उन्होंने कहा, क्या कभी आपने केजोमॉर्फिन का नाम सुना है? Casein is the milk protein. And all proteins are like strings of beads. And each bead is an amino acid. And when proteins are digested in your intestinal tract, those beads come apart and they're absorbed into your bloodstream. And that's true for other proteins except for casein. With casein, what happens is these things called casein-derived morphine-like compounds, casomorphins, come apart, and they look like this. They're these little strings of 4 or 5 or 6 or 7 amino acids in length. And they go to the brain, and they attach to the very same receptor that heroin, morphine, Demerol, or other narcotics would attach to. तो उन्होंने कहा कि क्या अलग है पहली बात, केजोमॉर्फिन होता क्या है? केजो जो है ये एक मिल्क प्रोटीन है, और बाकी प्रोटीन्स की तरह ये एक सिंगल पेप्टाइड में नहीं टूटता,
ये एक चेन ऑफ पेप्टाइड्स में टूटता है, 4 से लेके 7 पेप्टाइड्स की चेन होती है, जो मिल्क का प्रोटीन होता है। और इसको केज़ो इस मिल्क प्रोटीन को केज़ोमॉर्फिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो टूटता है 4 से 7 की चेन में, ये ठीक मॉर्फिन की तरह बिहेव करता है। ये जाता है और हमारे ब्रेन में उन रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है, जिसके ऊपर हेरोइन, कोकेन, मॉर्फिन ये सारी ड्रग्स काम करती हैं। एग्ज़ैक्टली उन्हीं रिसेप्टर्स पे जाके काम करता है और इसीलिए ये इतना एडिक्टिंग होता है। Why? Why would milk have an opiate in it? Well, what we believe is happening is, well, if a calf did not like nursing, and the calf says, Mom, I'm going to go wander into the woods, I'll be back Thursday. The calf is not going to do very well. Or have you ever looked at the face of a human baby when they're breastfeeding? They have this look of tremendous intensity and focus. And then suddenly they collapse into the deepest sleep. And we think, isn't that beautiful? The mother infant bond is this wonderful thing. I hate to tell you, you just drugged the kid. तो Casomorphins are part of the mother infant bond that make the child want to nurse. So when breast milk is made, for any species, there's protein, there's cholesterol, there's various hormones and sodium and so forth. But there's a little bit of feel good that goes to the baby's brain. So I take milk, which has traces of it, but I turn it into cheese and I'm concentrating the casein, I'm concentrating the casomorphins. Cheese is dairy crack. हुँ। तो कहते हैं कि ये जो केज़ोमॉर्फिन है, ये नेचर ने डाला क्यों दूध में? ये इसलिए डाला है ये थोड़ा-सा मॉर्फिन ताकि जो बछड़ा है उसको दूध पी के अच्छा लगे और वो बार-बार माँ के पास आए जब उसको भूख लगे कि मुझे यही वाला भोजन चाहिए, ना कि वो कहीं जंगल में भटकता फिरे भोजन की तलाश में। तो ये थोड़ी-सी मॉर्फिन डाली है नेचर ने ताकि वो बार-बार माँ के पास ही आए, उसको अच्छा लगे। और कभी आपने किसी छोटे बच्चे को देखा है जब वो माँ का दूध पी रहा होता है, तो जब वो दूध पी रहा होता है तो उसके मुँह के बड़ी लुक होती है कि जैसे वो बहुत काम कर रहा हो और जब दूध पी लेता है, एकदम से शांत और मुँह पे एक मंद-मंद मुस्कान और सो जाता है शांत होके। और हम कहते हैं, ओह! देखा माँ के पास बच्चा था तो कितना शांत लग रहा है, कितना खुश है। पर कहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी-अभी उसको ड्रग मिली है मॉर्फिन, इसीलिए वो हैप्पी है। तो ये नेचर ने एक प्रक्रिया बनाई है कि दूध में परफेक्ट भोजन बनाया है दूध। जिस-जिस जाति का दूध है वो उस जाति के लिए परफेक्ट खाना है। उस जाति के मुताबिक उसके अंदर फैट है, उसमें प्रोटीन है, उसमें एनर्जी का सोर्स है और थोड़ी-सी उसमें मॉर्फिन है ताकि उसको वापस भोजन करना दूध के फॉर्म में अच्छा लगे। लेकिन हम दूध का करते क्या है? जिसमें थोड़ी-सी केज़ोमॉर्फिन थी, अब हम उस दूध को, उस मॉर्फिन को हम कॉन्सन्ट्रेट कर देते हैं। पानी सारा निकाल देते हैं और सारा का सारा जो मिल्क सॉलिड है, मिल्क प्रोटीन जो है, केज़ोमॉर्फिन है, उसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो अब हम लिटरली जो दूध है, उसको एक बहुत पावरफुल चीज़ के शेप में हम उसको एक पावरफुल ड्रग जैसे हेरोइन या कोकेन तरह की हम एक पावरफुल ब्रेन के लिए ड्रग बना देते हैं। The most concentrated form of casomorphins you can get in any food. Okay, so this is the most powerful one. This is morphoceptin. It's not super powerful. It has about 1/10 the brain binding power compared to pure pharmacy grade morphine. So it's not quite enough to get you arrested, but it's just enough for you to say, that was nice. तो उन्होंने कहा जो केज़ोमॉर्फिन होती है, इसकी जो ड्रग पावर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन 1/10 है, जो आप नॉर्मल मॉर्फिन खाते हो, उससे 1/10 है। इतनी नहीं है कि आप खाओ तो आपको अरेस्ट कर ले कोई पुलिस, पर इतनी ज़रूर है कि आप बार-बार उसकी लत लग जाए आपको और बार-बार आपका मन करे कि खाओ और खाओ। Do we have some more cheese in the fridge for tomorrow? I couldn't possibly give up cheese. I could be vegan except for cheese. You've heard people say that. Okay. The government is well aware of this. And so the US government has been working with the dairy industry to take advantage of this exact property. And in the year 2000, the US government held, in cooperation with Dairy Management Inc.,
something called the Cheese Forum. And I want to show you some slides. These are not my slides. These are US government slides that I got through the Freedom of Information Act. The government separated Americans into two groups. The cheese enhancers sprinkle a little cheese on their salad. Not interested in those people. The cheese cravers open up the refrigerator door, grab a chunk of cheese and stuff it in their mouth. That's the group we want, because they can be pushed to double or triple or quadruple their cheese intake. तो कहते हैं कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसको अच्छे से पता है कि चीज से एडिक्शन होती है, तो उन्होंने जो डेयरी फार्म इंडस्ट्री थी, जो बहुत बड़ी फूड लॉबी है, उसके साथ मिलके ये एक फोरम तैयार किया और वहां पे उन्होंने ये दो ग्रुप बनाए लोगों के कि वो लोग जो चीज क्रेवर्स हैं और एनहांसर्स हैं। एनहांसर्स में वो लोग आते हैं जो थोड़ी सी चीज स्प्रिंकल करते हैं अपने सैलड के ऊपर, कम खाते हैं। उन्होंने कहा हम इन लोगों में इंटरेस्टेड नहीं है। जो क्रेवर्स हैं, जिनको क्रेविंग होती है, जिनको ऑलरेडी लत लग गई है चीज की, जो ठूस ठूस के चीज खाते हैं, तो उन्होंने कहा अगर हम इन लोगों को एक्सप्लॉइट करें तो हम इन लोगों की चीज कंजम्पशन 3 से 4 गुना आराम से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आदी हो चुके हैं चीज के, इनको ऑलरेडी चीज की एडिक्शन हो गई है। तो हम इनका बढ़ाएंगे और इससे हम क्या है, गवर्नमेंट जो है वो चीज मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलके हम फायदा उठाएंगे। How do we do it? Well, first of all, our goal is to trigger cheese craving. Again, these are not my slides. The US government set out to trigger disordered eating, cheese craving. तो कहते हैं कि ये मेरी स्लाइड नहीं है बनाई हुई, ये अमेरिकन गवर्नमेंट की है, जो मैंने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये निकाली है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ये कह रही है चीज वालों को कि हम ये एडिक्शन को, हम मानते हैं कि एडिक्शन है और इस एडिक्शन को और कैसे बढ़ाएं। हम क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे, चीज की जो क्रेविंग है, जो लत है, उसको और बढ़ाएंगे। And what they did was not unleash a whole bunch of advertisements encouraging people to eat cheese. What they did is they worked with Wendy's, the fast food chain, and I can show you the contract. They developed a burger called the Cheddar Lovers Bacon Cheeseburger as a test to see what would happen. And the beauty of working with Wendy's is if one corporate decision can affect every community where there's a Wendy's, no matter what city or state you're in. And it sold 2.25 million pounds of cheese. That's good. So based on that success, they worked with Subway, which had 2 sandwiches that didn't have cheese on it. They fixed that. They worked with Pizza Hut to put an entire pound of cheese on one serving, the ultimate cheese pizza. They worked with Burger King. They worked with Taco Bell, so that as you're going through the drive-thru, you don't know this is a contract with the government. Welcome to Taco Bell. Would you like to try one of our quesadillas today? These were government programs designed specifically to promote American agriculture, specifically cheese. Up it went. तो उन्होंने कहा उन्होंने अलग अलग फास्ट फूड रेस्टोरेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया जिनमें ज्यादा से ज्यादा चीज हर खाने में पुश की गई, और ये गवर्नमेंट ने इसलिए किया क्योंकि फूड लॉबी ने गवर्नमेंट को लॉबी किया कि हमें, डेयरी फार्मर्स ने, कि हमें ज्यादा से ज्यादा चीज बेचनी है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो हम आपकी मदद करते हैं क्योंकि हमें आप लोगों के वोट चाहिए। तो बेसिकली लोगों की हेल्थ गई भाड़ में और गवर्नमेंट ने बैकडोर से ये सारे प्रोग्राम चलाए, और उस कारण से 1920 में जो हमारी चीज कंजम्पशन थी वो यहाँ थी, और 2000 आते आते कितना गुना बढ़ गई, 30-40 गुना हमारी चीज कंजम्पशन बढ़ गई। This has been very, very, very successful. So, could that hurt me? Well, पर ये चीज कंजम्पशन बढ़ गई, हम इतना कंसर्न क्यों हैं? क्या इससे मेरी सेहत को कुछ नुकसान हो सकता है? तो अब एक पेशेंट से मिलवाते हैं, डॉक्टर नील बर्नार्ड। I want to introduce you. This is Catherine Lawrence. She grew up in Louisiana, and Catherine was an aerospace engineer for the Air Force. She was one of the first people to go into Iraq in 2003. अब मैं आपको कैथरीन लॉरेंस से मिलवाता हूँ। ये लुइसियाना स्टेट की निवासी हैं और ये एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, यानी कि जो प्लेन्स वगैरह से रिलेटेड इंजीनियरिंग होती है, और ये उन पहले चंद लोगों में से थी जो इराक में लड़ाई के लिए जिनको सबसे पहले भेजा गया था 2003 में।
because she designed military bases. And if you're in a war zone and you're working hard, you don't gain weight. And if you eat what the government gives you, you're going to be skinny. However, her tour of duty came to an end and she went back home to Louisiana. And when she got there, her friend said, "Welcome home, Catherine. Let's go out and eat. And what foods did you miss the most while you were over there?" And she said, "Well, I really missed those mac and cheese dinners and kind of anything with cheese in it." So a friend gave her an entire case of mac and cheese dinners, which she ate. It's 48 of them. She ate them every day for 48 days straight. तो जब कैथरीन अपनी ड्यूटी खत्म करके इराक से वापस अमेरिका आई, तो उसके मित्रों ने पूछा कि कैथरीन स्वागत है आपका, वापस आई आप। अब मुझे बताओ आपने सबसे ज़्यादा किस तरह का खाना मिस किया इराक में? तो कैथरीन ने कहा, "ओह! मुझे चीज़ की बहुत याद आई।" तो उसकी एक सहेली ने उसको 48 मैकरोनी और चीज़ के पैकेट्स दिए, जो कैथरीन ने रोज़ डिनर में 1 मैकरोनी और चीज़ खाया। तो लगातार 48 डेज़ तक कैथरीन ने मैकरोनी और चीज़ खाया। Straight. She gained weight, but she also developed some pain in her abdomen. And the pain started getting worse and worse and worse. And it went with her cycle. It would really get bad, and then it would get a little bit better, and then it would get bad. But as time went on, it was getting intolerable. तो कैथरीन का 48 डेज़ में ही उसका क्या-क्या उसकी प्रॉब्लम्स हुई, उसका वज़न बढ़ गया कैथरीन का। दूसरा उसके पेट में दर्द शुरू हो गया और ये दर्द ऐसा था, जो उसके जो मंथली पीरियड्स आते थे, उस साइकिल से रिलेटेड था उसका ये दर्द और आता था और जाता था। पर समय के साथ-साथ वो दर्द वर्स होता चला गया और उसको इनफर्टिलिटी भी हुई। वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रही थी। तो फिर वो अपने डॉक्टर के पास गई। And she went to the doctor who did a laparoscopy. You put a little incision in the abdomen, look inside with a scope. The doctor said, "You've got endometriosis. This is a condition where cells from the uterus creep out and start implanting all around the abdomen." तो जब अपने डॉक्टर के पास गई तो उसके डॉक्टर ने उसके पेट में एक छोटा-सा छेद करके और एक्चुअली छेद नहीं करते, जो अम्बिलिकस होता है, जो आपके पेट में जो सामने जिसको हिंदी में सुंडी कहते हैं अ, वो अम्बिलिकस में कैमरा के थ्रू वो एक वो डालते हैं, स्कोप डालते हैं, छोटा-सा कैमरा ट्यूब के अंदर लगा हुआ और फिर अंदर जाके पूरा एब्डोमेन देखते हैं, अंदर से सारी अंतड़ियाँ वगैरह देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि कैथरीन आपको एंडोमेट्रियोसिस है और ये एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? जो बच्चादानी होती है, उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है, उसके सेल्स जो सिर्फ़ बच्चादानी में ही रहने चाहिए, वो निकल-निकल के बाहर सारे पेट में अंतड़ियों के आस-पास सब जगह बिछ जाते हैं। तो जब आपका हार्मोन साइकिल होता है, जिसका काम है कि आपकी यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग को इफ़ेक्ट करना, पर क्योंकि सेल अब बच्चादानी के बाहर भी पड़े हैं, तो वही सेल है इसीलिए वो हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो बढ़ते घटते रहते हैं, फिर उनमें भी ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग तो बच्चादानी में ही होनी चाहिए पीरियड के साथ, पर क्योंकि ये सेल बाहर पड़े हैं, अब इनकी ब्लीडिंग होती है। बच्चादानी की ब्लीडिंग तो बाहर पीरियड के साथ निकल आएगी, पर जो सेल्स बच्चादानी के बाहर पेट में पड़े हैं, उनकी ब्लीडिंग कहाँ से निकल के आएगी? तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इन लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है। तो ये कैथरीन की प्रॉब्लम थी। And it causes pain, it can cause infertility, and the treatment is you get your uterus removed. She said, "Well, I'm not sure that I want to do that because I'd like to raise a family." तो इसका पक्का इलाज जो मेडिसिन के पास है वो सिर्फ एक ही है, वो है कि आपकी यूट्रस को निकाल दिया जाए, ताकि और सेल्स निकल-निकल के बाहर ना जाएँ। तो और यूट्रस के साथ-साथ वो ओवरीज़ भी निकाल देते हैं ताकि वो हार्मोन ही ना बने जो आपकी बचे हुए जो सेल्स हैं, उन पे भी इफ़ेक्ट करें। तो कैथरीन ने कहा कि मैं ये नहीं चाहती क्योंकि अभी मैं बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, तो अपनी बच्चेदानी और ओवरीज़ नहीं निकलवाना चाहती। But she and her husband talked about this and they decided to try medical treatments, which were not working. And there were days she couldn't function at all. And she finally said, "Okay."
तो उन्होंने फिर मेडिकल की ट्रीटमेंट की जो कि हार्मोन थेरेपीज़ होती हैं, उनसे उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पेन बहुत ज़्यादा थी। फिर उन्होंने एक नई अप्रोच अपनाई। I'll just have the hysterectomy. That'll be it. They scheduled it, but before she could have the operation, a friend said to her, foods affect hormones. Why don't you try a completely plant-based diet, vegan diet, no animal products at all. Keep the oils low. See what happens. तो फिर वो इतनी ज़्यादा दुखी हो गई जबकि उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं बच्चे पैदा करूँ। फाइनली उसने कहा मैं ये दर्द नहीं सह सकती, चलो मैं यूट्रस या बच्चादानी निकलवा देती हूँ। यहाँ तक कि उसने वो ऑपरेशन शेड्यूल भी कर दिया था। फिर उसकी एक सहेली ने कहा कि देखो जो खाना है, वो भोजन जो है वो हमारी बॉडी के हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करता है, उन पे प्रभाव डालता है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि कुछ दिन के लिए तुम एकदम प्लांट बेस्ड डाइट अपनाओ, वीगन हो जाओ और मीट, अंडा, मच्छी ये सारा बिल्कुल बंद कर दो। तो उन्होंने वो डाइट ट्राई की। And she did. And she felt remarkably good very fast. She started losing weight and her energy got better, but her pain started to diminish bit by bit by bit by bit. And as the day of the operation approached, she wasn't sure she wanted to go through it. She went back to the doctor who did a repeat laparoscopy and looked into her abdomen and then sent her into the waiting room. Oops, was it something I said? Okay. Sent her into the waiting room, and the gynecologist went out to talk to her husband. And he said, "This is really remarkable." तो जब उसका ऑपरेशन जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा था, तो उसका पेन चला गया और उसको एनर्जी लेवल बेटर फ़ील हो रहा था एंड क्योंकि पेन ठीक हो गया उसका, तो उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे सर्जरी करानी चाहिए, पर एक बार मैं उस डॉक्टर के पास दोबारा जाती हूँ, जिसने पेट में कैमरा डाल के सबसे पहले बताया था कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो जब उस डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने दोबारा उसके पेट में कैमरा डाला, तो फिर उस डॉक्टर ने कहा, "ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है जो मैंने आज देखा।" Her endometriosis is practically gone. And her husband said, she went on a completely vegan diet and she has been feeling better and better and better just week by week. And the doctor said, no, 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 no. Foods don't cause endometriosis, and there is no way a diet change could ever make it go away. There's only one explanation. This is a miracle. तो जो हस्बैंड था कैथरीन का उसको डॉक्टर ने कहा कि ये तो बहुत ही अचंभे की बात है कि जब मैंने अंदर कैमरा डाला तो जो एंडोमेट्रियोसिस थी यानी कि जो बच्चादानी के जो सेल्स थे अवशेष थे जो बच्चादानी के बाहर इधर-उधर पड़े हुए थे एब्डोमेन में पेट के अंदर, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट चले गए थे। तो कैथरीन के हस्बैंड ने कहा, "हाँ, कैथरीन आजकल एक नई डाइट अपना रही है, जहाँ मीट, अंडा, मच्छी नहीं खाती और उसके कारण वो ठीक हुई है।" तो डॉक्टर बोला, "नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खाना जो है वो हार्मोन्स को इफ़ेक्ट नहीं करता।" मतलब पता नहीं कैसा डॉक्टर था। बोला, "खाना का हार्मोन्स को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, इसका एक ही एक्सप्लेनेशन है, इसको हम चमत्कार कहेंगे।" So this was apparently coded on her medical record as miracle. And so she lost a lot of weight. She feels a lot better. Catherine now has 3 kids. सॉरी। Oops, was it something I said? Okay. Um, Sent her into the waiting room, and the gynecologist went out to talk to her husband. And he said, "This is really remarkable. Her endometriosis is practically gone." And her husband said, she went on a completely vegan diet and she has been feeling better and better and better just week by week. And the doctor said, no, 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 no. Foods don't cause endometriosis, and there is no way a diet change could ever make it go away. There's only one explanation. This is a miracle. So this was apparently coded on her medical record as miracle. And so she lost a lot of weight. She feels a lot better.
तो कैथरीन के मेडिकल चार्ट में डॉक्टर ने आंसर लिखा मिरेकल। और देखिए कैथरीन ने कितना वेट लूज किया इस डाइट पे जाने के बाद, और उसके 3 हेल्दी बच्चे हुए, जो कि डॉक्टर्स उसका बच्चादानी निकाल रहे थे। वो इतना पेन सफर करती, फिर इतना मेजर ऑपरेशन करती और अपनी फैमिली भी नहीं स्टार्ट कर पाती, और ओवरवेट रहती, और तमाम हजार बाकी बीमारियां उसको हो जाती। लेकिन अब देखिए वो कितनी हेल्दी है। Catherine now has 3 kids, never had the operation at all. She joined us as a Food for Life instructor, and now she's telling other women how they can get their bodies back and hopefully not have surgery. अब कैथरीन जो है वो हमारे साथ काम करती है, डॉक्टर नील बर्नार्ड कहते हैं, और बाकी पेशेंट्स को बताती है कि अपनी बॉडी कैसे हेल्दी रखें। Okay, so now wait a minute. This is a hormone related condition, right? I'm talking about hormones in cheese? Okay. Think about this. Cows don't produce milk. No animal produces milk until the animal has gotten pregnant and gives birth, right? तो उन्होंने कहा कि अब आप पूछोगे कि चीज जो है उसने कैथरीन की बीमारी क्यों ठीक कर दी? कैथरीन की बीमारी तो हार्मोन से रिलेटेड थी, तो चीज का हार्मोन से क्या लेना देना? तो उन्होंने कहा कि कोई भी जो जानवर है वो दूध तब तक नहीं प्रोड्यूस करता जब तक कि वो प्रेग्नेंट ना हो, उसके अंदर बहुत ज्यादा हार्मोन की तादाद ना बढ़ जाए। Right? So to keep the milk production high, the dairy farmers impregnate the cows not personally, they impregnate the cows every year. And so a cow's gestation is about 9 months, similar to a human. So 9 months out of 12, they're pregnant. Pregnant cows make estrogen. It's a match for your estrogen. It gets into the plasma. There it is, especially as the cow comes to term. तो उन्होंने कहा कि जो गाय है उसका जो गर्भ होता है वो 9 महीने का होता है, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग का होता है, इंसान का होता है। और गायों, क्योंकि हम दूध चाहते हैं गाय से, तो हम उनको 12 मास जो है प्रेग्नेंट रखते हैं उन गाय को। साल में क्या कहते हैं 9 महीने जो है गाय जो है वो प्रेग्नेंट रहती है। और जैसे-जैसे उसकी प्रेगनेंसी बढ़ती है दूध में, हम देख रहे हैं कि कितना हार्मोन बढ़ जाता है दूध के अंदर। उसके ब्लड में हार्मोन बढ़ता है, और फिर यही हार्मोन जो है दूध में कितना बढ़ता जाता है। तो अगर हम ये दूध पी रहे हैं तो हम क्या पी रहे हैं? इतना सारा एस्ट्राडायोल पी रहे हैं। ये वही हार्मोन है, फीमेल हार्मोन, जो हमारी जब हम प्रेग्नेंट होते हैं इंसान फीमेल्स, तो उनके दूध में आता है। तो ये फीमेल हार्मोन है। और ये नेचुरली प्रेजेंट होता है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि अगर जर्सी 2 गाय हो, देसी गाय हो तो क्या होगा? अरे गाय प्रेग्नेंट तो थी ना, तो गाय में ये हार्मोन तो होगा ही होगा। But then it goes into the milk in a little more concentrated form, and it's only a trace, it's not much. However, researchers in Rochester, New York went into a fertility clinic and they started doing sperm counts on various men. And they found this remarkable thing that the men who consumed the most cheese, that's the red group, had the worst sperm counts. Not तो उन्होंने कहा फिर इस चीज़ से प्रॉब्लम क्या होती है दूध से? तो कहना कि जो जितना ज़्यादा दूध कंज़्यूम करेगा, क्योंकि चीज़ है क्या? चीज़ तो है एक बहुत ही कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म है दूध का। दूध में से आपने सारा पानी निकाल दिया, और जो बच गया उसका पनीर बन गया एक तरह का। तो वो सारा का सारा जो हार्मोन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया अब उसके अंदर। तो उन्होंने क्या पाया, जो लोग एक इनफर्टिलिटी क्लिनिक में उन्होंने ये स्टडी की अमेरिका के रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने देखा कि जो लोग कम चीज खाते हैं उनका स्पर्म काउंट जो है वो इतना था, लेकिन जो जो लोग ज्यादा चीज खाते हैं उनका स्पर्म काउंट जो है 30% कम था। just low counts, but low motility and odd morphology. So their theory was it's only a trace of hormones, but what if a man has all the female hormones he wants to have, and you start giving him little bits of extra? Could that actually affect something like fertility? Hold that thought. तो उन्होंने ये पाया कि ना सिर्फ उन आदमियों का जो वीर्य था वो कम था, बल्कि पुअर क्वालिटी का भी था, और अजीब-अजीब उसकी शेप्स थी जो कि बच्चा नहीं बना सकती थी। तो इन लोगों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है।
फिर उन्होंने क्या कहा कि अगर हम आदमियों को जो ज़्यादा चीज़ खाते हैं, उनका देखें कि उनमें बीमारियाँ किस तरह की होती हैं। Researchers in California looked at something a little bit more important: women who had had breast cancer. If you've had breast cancer and you were treated for it, you got one thing on your mind: is my cancer going to come back at some point? And it turned out that those women who consumed the most high fat dairy, that's butter and cheese, that's the group on the right, they had a 49% higher risk of dying of their breast cancer compared to the women who tended to avoid it. तो उन्होंने क्या पाया कि जो लेडीज़ थी, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया हो और ब्रेस्ट कैंसर एक बार आपको हो गया, आपने उसका इलाज करा दिया, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन जो भी आपका एक्सक्यूज़ मी इलाज था, आपने कर लिया। लेकिन उसके बाद आपने अ, आपका सबसे बड़ा जो डर है वो क्या है? कि क्या मेरा ब्रेस्ट कैंसर वापस आ जाएगा? तो क्या पाया रिसर्चर्स ने? रिसर्चर्स ने ये पाया कि जो लेडीज़ सबसे ज़्यादा दूध और चीज़ ले रही थी, उनका ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा वापस आया और उनका 49% ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा रेट था अपने कैंसर से मरने का। किसके कंपैरिज़न में? उन लेडीज़ के कंपैरिज़न में जो कम दूध और कम चीज़ ले रही थी। Now, the difference here is very small. The high group was more than one serving a day, the low group was less than half a serving a day. और जो मात्रा थी इनकी दूध की, वो बहुत ही कम डिफरेंस था। जो हाई अमाउंट में जो दूध ले रहे थे, जो 50% ज़्यादा कैंसर से मर रहे थे, वो सिर्फ़ 1 सर्विंग ज़्यादा ले रहे थे दूध की। वो 1 सर्विंग 1 ग्लास भी नहीं होता, यानी कि 1 कप, वो जो मेजरिंग कप होता है, वो। तो उतने सा दूध लेने से उनकी 50% ज़्यादा कैंसर से डेथ हो रही थी। तो कितनी बड़ी बात है कि जिसको हम इतना हार्मलेस मानते हैं कि बच्चों को दूध पिलाओ, पिज़्ज़ा खिलाओ, बेटा हम मॉल में गए क्या खाना है? पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाओ जी सारी फैमिली बैठ के पिज़्ज़ा खाया करती है, क्योंकि सस्ता है और टेस्टी है, घर जाके खाना नहीं बनाना पड़ेगा। हमें क्या पता हम अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, अपने हाथों से हम अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। और ये जो दिन भर हम 2-3 बार चाय पीते हैं, उसमें दूध डालते हैं, सिर्फ़ इतने दूध से फ़र्क पड़ जाता है। फिर लोग मुझसे कहते हैं, "भई हम तो वेजिटेरियन हैं, कैंसर इतना क्यों फैल रहा है? मुझे क्यों कैंसर हो गया? फलाने को क्यों कैंसर हो गया?" प्रॉब्लम अभी कल-परसों ही मेरे को किसी ने बोला कि उनके कोई जानकार थे, वो यंग लड़का जर्मनी गया था पढ़ने के लिए और ब्राह्मण परिवार से ये हैं, तो ये अंडा, मच्छी, मीट, ये सब, शराब, ये सब तो लेते नहीं है। लड़के को स्टेज 3 टेस्टिकल्स का कैंसर है, वापस इंडिया आ गया। अब देखो उनकी आँखों के आगे उनका एक जवान लड़का इस तरह से कैंसर से जूझ रहा है और पता नहीं बचेगा या नहीं। तो आपकी हालत सोचिए क्या है। और मैं उसको सीधा लाइफ़स्टाइल से जोड़ के देखती हूँ कि अगर और ऐसे लोग ज़्यादा बल्कि दूध पीते हैं कि भई हम मीट, अंडा तो खा नहीं रहे, तो सेहत किससे बनेगी? दूध। तो ये प्रॉब्लम है हमें। हमें समझना होगा कि ये ज़हर है हमारे लिए। So these researchers said the same thing as the people in Rochester. Could it be that the traces of hormones in dairy products could actually affect a woman's chemistry? Now, I'm quite prepared to believe that the amounts are just small. However, when milk is turned to cheese, the hormones go with the fat. Remember, cheese 70% fat? The average American consumes 35 pounds of it last year, this year, and next year. And your body is already making all the hormones that you are supposed to have, so to speak. And if I'm adding a little bit more, it could be there is no threshold. उन्होंने कहा कि ठीक है कि दूध में मात्रा इस हार्मोन की, जो फीमेल हार्मोन्स की है, वो कम होती होगी। लेकिन आप जब उसको चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, तो चीज़ में तो कॉन्सन्ट्रेट होगी और जितना हार्मोन आपको चाहिए, आपकी बॉडी ऑलरेडी बना रही है। फिर आप बाहर से ये जो चीज़ डालेंगे, ये तो आपके हार्मोन आउट ऑफ कंट्रोल कर देंगी, एक चीज़। दूसरी चीज़, दूध में जो ऐसे हार्मोन्स हैं, वो आपके हार्मोन्स के साथ मिलके उनको और ज़्यादा प्रोडक्शन उसकी बढ़ा रहे हैं। तो हर तरह से जो है आप अपनी बॉडी के अंदर अ,
ये फीमेल हार्मोन्स एक डेंजरस लेवल तक शायद पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण हमें ये रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं कैंसर के हवाले से। So, the scientists are still sorting this out. We don't really know where this science is going to go. But while they're figuring it out, do you want to feed this to your 6-year-old son? उन्होंने कहा कि साइंस अपना काम कर रही है, पर हमें जितना अभी तक पता चला है साइंस के हवाले से, क्या हम क्यों वेट करें कि कितने परसेंट कैंसर बढ़ता है, कितने परसेंट लोग उनमें से मरते हैं। हमें तो ऑलरेडी पता है कि ये दूध और चीज़ खाने से कैंसर बनता है, तो हम क्यों अपने 6 साल के बच्चे को दूध देंगे फिर? Your 7-year-old daughter, अपने 6 साल की बच्ची को क्यों दूध देंगे? your wife, your husband. That's the question that people are now asking based on this work. Okay. या हम खुद पिएँगे या अपनी पत्नी या अपने हस्बैंड को ये देंगे? ये हमें ये इस पे विचार करना चाहिए। अब हम बात करते हैं अस्थमा की। Now, it's not just the fat and the hormones. There's something about the protein. This is Chad. Chad grew up in Portsmouth, New Hampshire, right on the. उन्होंने कहा कि मिल्क और चीज़ में सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो फैट की नहीं है। प्रॉब्लम है इसमें एनिमल प्रोटीन जो है वो भी हमारे लिए खतरनाक है। तो कहते हैं अब मैं आपको चैड से मिलवाता हूँ। चैड जो है वो पोर्ट्समाउथ जो है न्यू हैम्पशायर का निवासी है। उसको बहुत सख्त किस्म का अस्थमा था। The water, and he was an athletic young boy. Except that Chad could not get through a ball game because he had asthma. And asthma can be exercise induced. So, right about the third inning, he'd be coughing and wheezing and couldn't play anymore. If he would go over to a friend's house and they had a dog, he would get allergy induced asthma and he had to be hospitalized repeatedly. And कहता ये बहुत ही एक्टिव बच्चा था 7 साल का, इसको खेल-कूद में बहुत अच्छा लगता था। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, इसको सीवियर अस्थमा था और ये जब स्पेशली जब भी ये खेलने जाता था इसको अस्थमा का अटैक पड़ जाता था और जब अपने दोस्त के घर जाता था जहाँ पे एक डॉग था, वहाँ इसको सीवियर अस्थमा के अटैक्स होते थे, एलर्जिक अस्थमा के। when he was 18, he had heard somewhere that vegan diets, and especially getting away from dairy in particular, could make asthma go away. Many of you know about this already. It's the protein they're keying in on, not the fat. He said, तो जब ये 18 वर्ष का हुआ, इसका सारा बचपन इसी तरह से गुजरा। जब ये 18 वर्ष का हुआ, तो इसको कहीं से पता चला कि जो वीगन डाइट है, जिसमें दूध, मीट, अंडा, मच्छी नहीं खाना है, इस तरह की अगर मैं डाइट अपनाऊंगा, तो मेरे को अस्थमा में बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि ये जो एनिमल प्रोटीन है, स्पेशली जो दूध का एनिमल प्रोटीन है, ये एलर्जीज और अस्थमा के लिए बहुत बुरा है। said, I'll try this. Went vegan within 3 months. No more asthma, no more allergies, and he's now got his own dog, and he's raising his family, and nobody has asthma. Now, we don't. 3 महीने के अंदर-अंदर क्या हुआ कि चैड का अस्थमा बिल्कुल ठीक हो गया, सारी एलर्जीज़ चली गई और यहाँ तक उसको फिर कभी अस्थमा या एलर्जी नहीं हुई और यहाँ तक कि अब डॉग से भी एलर्जी नहीं है। खुद उसके घर में अब एक डॉग है। I don't think we know enough about this, but what seems to be happening is it's not that you're allergic to the milk, but somehow milk makes other allergies worse. So you've got a cat allergy and you get itchy eyes from your cat. And when you get the dairy out of your diet, somehow you can pet your cat again. And I don't think anyone knows quite why that works. So there's Chad. तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमें ठीक से मालूम नहीं है कि ये जो मिल्क है, ये क्यों बाकी एलर्जीज़ और अस्थमा कॉज़ करता है। उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा होता है। तो जब आप दूध निकाल देते हो, तो चांसेस हैं कि आपका अस्थमा जो है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपकी एलर्जीज़ भी चली जाएँगी। और ये है आज का चैड और ये एलर्जी फ्री ज़िंदगी जीता है, अस्थमा फ्री ज़िंदगी जीता है और हेल्दी कुकिंग सिखाता है लोगों को। Now he's allergy free, asthma free, and he runs, Ruby, the online cooking school. He runs the plant-based section of that. So, all right. So this raises the scientific question: could dairy products contribute to asthma? I don't know. Let's have a look. Let's Google this, shall we?
I'm going to type it in. There's asthma, dairy. Let's see what I come up. Okay, there it is. The first thing I find is National Asthma Council Australia, and right on their homepage they tackle this directly. Dairy foods have often been Dairy foods have often been suggested as a common trigger for asthma. But there's little scientific evidence to support this myth. Unfortunately, most Australians are missing out on the health benefits that come from consuming milk, cheese, and yogurt, as they don't consume enough dairy foods in their. Wait, this is starting to smell a little funny, isn't it? Let's go. तो उन्होंने कहा कि क्या डेयरी से एज़मा होता है? कहता है मुझे चलो हम गूगल देखते हैं कि गूगल क्या कहता है। बेसिकली डॉक्टर नील बर्नार्ड बताना चाहते हैं कि जब दूध से इतनी प्रॉब्लम होती है, तो कॉमन पब्लिक को इसके बारे में पता क्यों नहीं चलता? और वो कारण है कि फूड इंडस्ट्री एक बहुत पावरफुल लॉबी है, जो इस तरह की सारी रिसर्च को दबा देती है। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने ये टाइप किया तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर ये निकल के आया कि लोग कहते हैं कि दूध से एलर्जी होती है, एस्मा होता है, पर ऐसा नहीं है। अधिकांश लोग इनफ दूध और अपनी डाइट में नहीं कंज्यूम करते। फिर कहते हैं कि ये मेरे को कुछ फिशी लगा कि दाल में कुछ काला है। तब मैंने क्या पाया? Go back. I want to click on their sponsors page. There it is. Okay, so there's Dairy Australia and 5 drug companies. So तो उन्होंने कहा कि जब मैंने वेबसाइट देखी कि कि इस वेबसाइट को पैसा देने वाले लोग कौन हैं? तो कहता है मैंने पाया कि डेयरी ऑस्ट्रेलिया जो है, उनके 5 में से 6 में से 1 कंट्रीब्यूटर तो है डेयरी इंडस्ट्री ऑस्ट्रेलिया की और बाकी जो 5 हैं, वो सारी ड्रग इंडस्ट्री है। तो ना ड्रग इंडस्ट्री ना डेयरी इंडस्ट्री चाहते हैं कि लोगों को असलियत पता चले कि दूध और चीज़ जो है एस्मा और एलर्जी के लिए कितना बुरा है। one of these outfits makes money if you buy dairy and cheese, the other make money if you have asthma. Nobody gets any money if you get better or stop eating dairy products, okay? So don't wait for the research to be finished. If you have a child with asthma, if you have allergies, run, don't walk to a dairy-free diet. It's not going to cure everybody, but it's a good place to start. तो उन्होंने कहा कि इसीलिए क्योंकि ये इतनी बड़ी फूड लॉबी है, आप वेट मत करिए कि कोई आपको आके इन सब फायदों के बारे में बताएगा। अगर आपके या आपके परिवार में या किसी बच्चे को एलर्जी है किसी भी तरह की या एज़मा है, तो आप चल के मत जाइए, आप दौड़ते हुए जाइए। कहाँ जाइए? दूध, मीट, अंडा, मच्छी इन सब से दूर दौड़-दौड़ के भागिए, इन सब से दूर जाइए। मैं ये नहीं कहता कि 100% सबका ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी इसमें। इसलिए आप कम से कम ये ट्राई तो करके देखिए।